السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی الفاظ ایسے ہیں جن میں ایک ہی حرف بار بار رپیٹ ہوا ہے؟ اس کے معنی میں شدت اور زور پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے؟ لکھا کیسے جاتا ہے جب کوئی حروف مادہ ایک کلمہ میں رپیٹ ہو؟ آج ہم مضاعف کے نحوی اور صرفی قواعد کو آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے فعل کی اقسام ماضی یعنی کہ حروف اصلی کے اعتبار سے، حروف مادہ کے اعتبار سے۔ اگر حروف مادہ کے جو اصلی حروف ہیں، جو وہ تین ہوں یا چار ہوں، ان میں کوئی حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو یا حرف کی تکرار نہ ہو، تو وہ صحیح افعال کہلاتے ہیں۔ وہ فعل جس کے حروف مادہ کے تین یا چار حروف میں حمزہ، حرف علت، واو اور یا حروف کی تکرار آ جائے تو وہ فعل غیر صحیح کہلاتا ہے۔ تو غیر صحیح فعل کی ہم نے پچھلی بار میں ان کے نام پڑھے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا محموس، مضاعف اور معطل۔ حرف علت کی تعریف بھی پچھلی کلاس میں دیکھی تھی کہ علت علیل سے نکلا ہے، یعنی کہ بیمار حروف۔ یہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو کبھی گر جاتے ہیں، کبھی بدل جاتے ہیں اور کبھی اعراب پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلی کلاس میں محموز کو دیکھا تھا، آج ہم انشاءاللہ مضاعف کو دیکھیں گے۔ وہ فعل جس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے محموز کہلاتا ہے۔ وہ محموز الفا بھی ہو سکتا تھا، یعنی کہ حمزہ فا کلمہ کی جگہ پر، حمزہ آئین کلمہ کی جگہ پر اور حمزہ لام کلمہ کی جگہ پر بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن جو محموز کے قواعد ہیں وہ لاگو صرف اس سچویشن پر ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ لیکن کہیں اور پر بھی اگر حمزہ یعنی کہ حمزہ درمیان میں یا آخر میں بھی آ جائے تو اس کی پہچان ہم ایسے ہی کریں گے کہ یہ غیر صحیح فعل ہے اور اس میں محموز ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، محمود کے قواعد آگے اپلائی ہوتے ہیں یا نہیں، یہ انشاءاللہ پھر ہم بعد میں دیکھیں گے۔ قواعد اسی صورت میں اپلائی ہوں گے جو ہم نے قاعدہ محموز کا پڑھا تھا، اس کے مطابق اگر ہوں گے تو قواعد اپلائی ہوں گے، اور اگر اس قاعدے کے مطابق نہیں ہوں گی، شرائط پوری نہیں ہو رہی ہوں گی، تو قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود وہ غیر صحیح فعل بھی رہے گا اور وہ محموز بھی ہوگا۔ مضاعف کیا ہے؟ وہ فعل جس کے حروف میں تکرار آ جائے، یعنی کہ وہ تکرار فا اور عین کلمہ پہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ شروع میں بھی دو حرف ایک جیسے آ سکتے ہیں اور پہلا اور آخری حرف بھی ایک جیسا ہو سکتا ہے، اور یہ بھی آپشن ہے کہ آخری والے جو دو حرف ہیں وہ ایک جیسے ہوں۔ تو آج انشاءاللہ جو مضاعف کے قواعد پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان باقی کی سچویشنز پر یہ رول اپلائی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ سچویشن ہی کریٹ نہیں ہوتی رول کے مطابق، اس پر سچویشن کریٹ ہوتی ہے، تو اسی پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ محموز کی تھوڑی سی ریویژن دوبارہ کر لیتے ہیں۔ اگر کسی لفظ میں دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں، اس طرح کہ پہلا حمزہ متحرک اور دوسرا ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں ہمیں نظر آیا دو حمزہ جمع ہوئے، پہلا متحرک دوسرا ساکن، یہ شرط ہے۔ اگر جو ہے وہ دونوں متحرک ہوتے تب بھی یہ قاعدہ نہ ہوتا، اور اگر پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہوتا تب بھی یہ قاعدہ نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ شرط ضروری ہے کہ اس طرح جمع ہو کہ پہلا متحرک اور دوسرا ساکن۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ تبدیلی جو ہے وہ ثلاثی مجرد کے تمام ابواب سے مضارع متکلم کے صیغے میں ہوتی ہے۔ صرف مضارع متکلم کے صیغے میں یہ تبدیلی آپ کو ثلاثی مجرد میں نظر آئے گی، جبکہ مزید فی میں باب افعال، باب افتعال دونوں میں آپ کو یہ تبدیلی نظر آئے گی۔ اور ہم نے پچھلی بار اس کی گردان بھی بنا کے دیکھی تھی، باب افعال کی پوری گردان میں ہی تبدیلی واقع ہوئی تھی۔ تو آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے مضاعف کو۔ مضاعف کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل جس کے حروف مادہ میں تکرار آ جائے، وہ مضاعف یا مضاعف کہلاتا ہے۔ یہ دونوں لکھنے والے انداز آپ کو عربی کی مختلف کتابوں میں آپ کو یہ دونوں انداز نظر آتے ہیں، تو مضاعف بھی اور مضاعف بھی۔
ठीक है, दोनों, एक में अलिफ है और एक में अलिफ नहीं है, ये रेफरेंस है, लेकिन दोनों ही तरह से ये लिखा और पढ़ा जाता है। बाबा रा सालाम सा और मीम दाल दाल, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमारा फोकस ये थर्ड वन पर है कि जिसमें आइन और लाम कलीमा जो है वो एक जैसा हो, तो वहां पर हम इंशाल्लाह देखेंगे कवायद कौन से अप्लाई होंगे। तो मुदाफ में इदगाम के कवायद अप्लाई होते हैं। अगर आइन और लाम कलिमा दो मर्तबा आ जाए तो इदगाम के कवायद लगेंगे। ठीक है, मीम दाल दाल यानी कि एक सेम हरूफ, एक जैसे हरफ अगर आ जाए तो उन पर इदगाम के कवायद होते हैं। इंशाल्लाह देखते हैं डिटेल में कि इदगाम कैसे होता है और इदगाम के कवायद क्या होते हैं। सलासी मुजर्रद के तीन अबवाब नून दाद और सीन, और कभी कभी बाब काफ में इस्तेमाल होता है ये मुदाफ का रूल। और सलासी मजीद फी के आठ अबवाब, जो पहले आठ अबवाब थे, सफाई बाब इफ इलाल और इफ इलाल में इस्तेमाल होता है। यानी कि पूरे जितने भी हमने पढ़े थे, कि हमने ये पढ़ा था कि पहले आठ अबवाब इंपॉर्टेंट है और कुरान में इनका इस्तेमाल ज्यादा है, तो हमारा फोकस पहले आठ अबवाब पर था। ये दो अबवाब जो थे वो हमने सिर्फ सरसरी से पढ़े थे आखिर में। ठीक है, तो जो पहले आठ अबवाब हैं इन सब में मुदाफ का इस्तेमाल हुआ है, और इंशाल्लाह एक एक करके हम देखेंगे। आज हम इंशाल्लाह सलासी मुजर्रद के पहले ये जो बाब नून दाद और सीन है इसकी मश्क करेंगे, और इसके इसी से गर्दान बनाएंगे, इसी पर इदगाम की कवायद लगाएंगे, और इसी से रिलेटेड आपका इंशाल्लाह होमवर्क होगा। और अगली क्लास में आपको सलासी मजीद फी के अबवाब के हवाले से मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अच्छा, अब गर्दान तो हमें समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये भी देख लेते हैं कि माजी में सिर्फ पहले पांच सिगों में इदगाम होगा, ये बात अभी आप नोट कर लें। और इंशाल्लाह जब आगे हम गर्दान करेंगे तो उस पर फिर आप देखेंगे कि क्यों आगे सिगों पर इदगाम नहीं होगा। माजी के सिर्फ पहले पांच सिगों में इदगाम होगा, और मुजारे में इदगाम सारे सिगों में होगा सिवाय मोअन्नस जमा के दो सिगों के। ठीक है, चाहे वो हाजिर का हो चाहे गायब का हो, मोअन्नस का जमा का सीगा, उन दोनों पर इदगाम नहीं होगा, बाकी तमाम सीगों में इदगाम होगा। गैर सही फेल मुदाफ मीन दाल दाल बाब नून दो हम जिन्स एक जैसे हरूफ, कायदा क्या है? पहला हरफ साकिन, दूसरा मुतहर्रिक, लिखने में दोनों को मिलाकर ऊपर शद डाल दी जाती है, ये इदगाम का कायदा नंबर एक है। यानी कि जब एक जैसे हरूफ आप तजवीद में भी पढ़ती हैं तो उसको इदगाम मिसलाइन कहा जाता है, कि एक हरफ दूसरे हरफ में मुकम्मल तौर पर मर्ज हो जाता है, और उसको फिर शद के साथ लिखा कर दिखाया जाता है, लिखा हुआ हमें नजर आता है। ठीक है, जैसे मद, ज़न्ना, ज़ल्ला। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे आपके पास आ जाएंगे, मस्सा, दर्रा या दुर्रू। ठीक है, तो ऐसे कलिमात जो शद के साथ लिखे हुए नजर आते हैं वो इदगाम के हरूफ होते हैं, और तजवीद की इस्तिलाह में इसको इदगाम मिसलैन कहा जाता है। तजवीद में इदगाम मिसलैन, इदगाम मुतकारिबैन और इदगाम मुतजानिसैन तीन तरह के पढ़ाए जाते हैं। लेकिन एक जैसे हरफ का अगर इदगाम हो रहा हो तो उसको इदगाम मिसलैन कहा जाता है। पहला हरफ साकिन, दूसरा मुतहरक, तो ये इदगाम की आइडियल सिचुएशन होती है। महमूज में क्या था कि पहला हमजा या पहला हमजा मुतहारिक था और दूसरा हमजा साकिन था। इसमें मुदाफ में कायदा उलट है, हरफ कोई भी हो सकता है, और पहला इसका साकिन और दूसरा मुतहारिक होना जरूरी है, जबकि महमूज में सिर्फ हमजा से रिलेटेड कायदा था। ठीक है, तो जैसे ये आपके सामने नजर आ रहा है मद, ठीक है, ये दाल के ऊपर साकिन और ये दाल जबर वाली, तो इसका इदगाम का ये इदगाम की आइडियल सिचुएशन होती है कि दो एक जैसे हरूफ हों और उनमें से पहला साकिन और दूसरा मुतहरिक हो। तो रस्मुल खात्मे कुरान पाक में ये आपको इस तरह से नजर आता है, मद और शद के साथ। जब भी किसी हरफ पर आप शद देखें तो इट मीन दैट के इसके अंदर दो हरूफ है, पहला हरफ साकिन है और दूसरा मुतहरिक है। कभी शद के ऊपर आप जबर देखती हैं, कभी शद के ऊपर आप जेर देखती हैं, और कभी शद पे आप पेश देखती हैं। तो इट मीन दैट कि यहाँ पर दो हरूफ होते हैं, अगर जबर होगी तो पहला साकिन और दूसरा जबर वाला होगा, और अगर जेर होगी तो पहला साकिन और दूसरा जेर वाला होगा, और अगर पेश होगी तो पहला साकिन और दूसरा पेश वाला होगा। तो जो ही शब्द आप देखें तो आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि यहाँ पर दो एक जैसे हरफ हैं, पहला हरफ साकिन और दूसरा मुतहरिक। साकिन हरफ पिछले हरकत वाले हरफ से मिलाकर पढ़ा जाता है, और मुतहरिक अलिफ अलग पढ़ा जाता है। जैसे इसको कैसे मद दा, अब मैंने थोड़ा रोक कर पढ़ा है ताकि आपको अंदाजा हो।
کہ اس کے اندر دو حروف ہیں، اور جب تجوید پڑھائی جاتی ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس کو شد والے حروف کو آپ نے مضبوطی کے ساتھ جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مضبوطی اور جماؤ اس ان دو چیزوں کو یعنی کہ دو حروف کو ظاہر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ دو حروف ظاہر کر کے پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ ایک پڑھ لیں اور ایک چھوڑ دیں، جیسے مدہ، مدہ، ٹھیک ہے، مدہ، دو دو حروف پڑھے جائیں گے۔ شد مین دیٹ کہ اس کے اندر دو حروف ہیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک۔ اچھا، یہ ادغام کا پہلا قاعدہ ہو گیا، پہلی سچویشن ہوگی کہ سچویشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ دو ایک جیسے حرف ہوں، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو ایسے سیدھا شد کر کے لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ادغام ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسی سچویشن بھی کریٹ ہو سکتی ہے کہ جب دونوں خامزیز یعنی کہ ایک جیسے حروف متحرک ہوں دونوں پر۔ اب متحرک سے مطلب ہے کہ زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ادغام کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے، پہلی سچویشن کیا ہے کہ اس طرح سے اگر اسلوب نظر آ جائے، یم دودو، اب دو ایک جیسے حروف ہیں، دونوں متحرک ہیں، تو اس صورت میں اس کا ادغام کیسے کریں گے؟ اگر تو یہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہوتا تو سیدھا ہم اس کو شد کر کے لکھ دیتے، کوئی اور سٹیپ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن اب چونکہ ایسا نہیں ہے تو دوسرا سٹیپ ہم کیا کریں گے کہ پہلے حرف کی حرکت پیچھے اگر ساکن حرف ہے تو اس کو دے دیں گے اور ادغام کر دیں گے۔ اب یہ پہلا حرف جو دال ایک جیسے جو حروف ہے ان کا جو پہلا حرف ہے، اس کی حرکت آپ پیچھے دے دیں گی، تو یہ اپنی حرکت ایکسچینج کر لے گا، یعنی کہ میم اپنی حرکت جو ساکن ہے وہ دال کو دے دے گا، اور دال جو کہ پیش والا ہے وہ اپنی حرکت میم کو دے دے گا، تو یہ ہو جائے گا یمدو۔ ٹھیک ہے، یمدو۔ اب آئیڈیل سچویشن بن گئی ادغام کی، جب بھی دو اس طرح کے حروف ہوں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، تو ان کو شد کے ساتھ لکھا جاتا ہے یمدو۔ ٹھیک ہے، یمدو۔ تو یہ رول نمبر 2 ہو گیا۔ رول نمبر دوسرا رول ہے کہ دو متحرک حرف اور پیچھے اگر ساکن ہے تو پہلا متحرک حرف جو ہے وہ اپنی حرکت پیچھے دے دے گا، وہ چاہے پیش کی ہو، چاہے زبر کی ہو، چاہے زیر کی ہو، ڈزنٹ میٹر۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی حرکت ایکسچینج کر لے گا اور اس کے بعد پھر اس کا ادغام کر دیا جائے گا، آخر میں کریں گے ادغام کی شد ہی آئے گی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد رول نمبر 3، تیسری سچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں ہی حروف متحرک ہوں، یعنی کہ جو ایک جیسے حرف ہے وہ دونوں متحرک ہوں اور پیچھے کوئی ساکن بھی موجود نہ ہو، تو اس سچویشن میں کیا کریں گے؟ اس سچویشن میں بھی یہی کیا جائے گا کہ اس کو زبردستی ساکن کر دیا جائے گا۔ یہ جو پہلا لیٹر ہے، جو ہم جنس حروف ہیں، جو ایک جیسے حرف ہے، ان کا جو پہلا حرف ہے اس کو زبردستی ساکن کر دیا جائے گا، اور پھر جب یہ زبردستی ساکن ہوگا تو پھر وہ ادغام کی آئیڈیل سچویشن کریٹ ہوگی کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک اور اس کو شد کر کے لکھ دیا جائے گا، یہ بن جائے گا مدن۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو مضاعف کا ہے وہ فعل پہ بھی لاگو ہوا اور اسم پر بھی لاگو ہوا، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، مصدر اسم ہوتا ہے، تو یہ اسم پر یہ رول اپلائی ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آگے ایک ایک کر کے اور مثالیں دیکھتے ہیں تو آپ کو اور واضح ہوگا۔ غیر صحیح افعال باب نون، جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ باب نون، ضاد اور سین سے زیادہ استعمال ہوا ہے، کاف سے کبھی کبھی استعمال ہوا ہے، جبکہ باب فا اور باب ہا سے یہ استعمال نہیں ہوا، اس لیے ہم ان پر بات ہی نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، باب نون حروف مادہ ہے ضاد را اور را، باب نون کا وزن کیا ہوتا ہے؟ نصرہ ینصرو نصرن، تو اسی وزن کے اوپر جب فعل ماضی کو ہم نے بنایا ضاد را را حروف مادہ کو ڈالتے ہوئے تو نصرہ سے بن گیا درارا۔ تو درارا میں جو ہمارے پاس سچویشن کریٹ ہو رہی ہے کہ دو ایک جیسے حرف آ گئے، اب اگر تو یہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہوتا تو سیدھا اس کو شد کر کے لکھ دیتے یہاں پر رول نمبر 1 کے مطابق، لیکن اب چونکہ یہاں پر یہ نہیں ہو رہا تو ہم رول نمبر 2 پر آئیں گے جس میں دونوں حروف متحرک تھے، تو اور اس کے بعد پچھلا حرف اگر ساکن ہو، پچھلا حرف اگر ساکن ہوتا تو اس حرف کی حرکت ہم پیچھے دے دیں گے، لیکن اب یہاں پر یہ والا رول بھی نہیں ہو رہا، تو اب تیسرے حرف کیونکہ پیچھے ساکن موجود ہی نہیں ہے، تو تیسرے رول کی طرف آئیں گے جس میں یہ تھا کہ دو متحرک حرف ہوں اور پیچھے اگر ساکن نہیں ہے تو اس کی حرکت زبردستی ساکن کر دیں گے، تو ہم یہاں پر اس کی حرکت زبردستی ساکن کر دیں گے، اس را کی جو پہلا را ہے اس کی حرکت زبردستی ساکن کر دی، تو یہاں ہنٹ کے طور پر میں نے آگے لکھ دیا ہے زبردستی ساکن کیا اس را کو۔ ٹھیک ہے، یہ رول نمبر 3 لاگو ہوا ہے ادغام کا۔ تو اب یہ سچویشن آئیڈیل ہوگی ادغام کی، تو اب اس کو پہلا ساکن دوسرا متحرک تو اس کو شد کر کے لکھ دیں گے، لکھا شد کے ساتھ جاتا ہے، پڑھا اس کو اسی طرح سے جاتا ہے جیسے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، جیسے در را،
दो बार रा पढ़ी जाती है, इसीलिए आपसे कहा जाता है जमाओ और शिद्दत के साथ पढ़ें ताकि ये दोनों हरूफ वाज़िया हो सके। दर रा, दर रा। दो, आप देखिए शद को भी किस तरह पढ़ा जाता है, दर रा, दो रा ही पढ़ी जाती हैं। ठीक है। उसके बाद फेल मुजारे आ गया। इसी रूट वर्ड को जब हमने दौद रा रा को बाब नून पर डाला यद शुरू के वजन पर, तो ये बन गया यद रोरू, यद रोरू। तो अब यहाँ पर देखें कि पहली सिचुएशन नहीं है जिसमें दो एक हरूफ एक जैसे हरूफ तो आ गए, लेकिन अगर पहला साकिन दूसरा मुतहरिक होता तो सीधा शाद करके लिख दिया जाता। लेकिन अब रूल नंबर 2 पर आ जाएंगे जिसमें दोनों मुतहरिक हैं और पीछे हरफ हमें साकिन मिल रहा है। अगर पिछला हरफ साकिन होगा तो पहले हरफ की हरकत यानी कि जो पहली रा है इसकी हरकत पीछे दे देंगे, यानी कि ये अपनी हरकत एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये बन जाएगा यदुर। ठीक है, यदुर। अब ये रा खुद साकिन हो गया, इसने अपनी हरकत पीछे दुआत को दे दी, और दुआ साकिन था उसने अपनी हरकत इसको दे दी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हरकत पीछे दे दी, ये हिंट के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है। और इसको कैसे लिखा जाता है कुरान पाक में, शद करके लिखा जाता है और शद के ऊपर अब पेश आएगी, ये हो जाएगा यदुर्रु, यदुर्रु। ठीक है। इसी तरह से मजदर देखें तो जैसे नसरन है, इसी रूट वर्ड को जब डाला नसरन के वजन पर तो ये बन गया दरवन। तो अब यहाँ पर वो जो पहली सिचुएशन थी कि पहला हरफ साकिन और दूसरा मुतहरिक, तो उसके मुताबिक यहाँ पर आप देखें कि इसका इदगाम करके लिख दिया गया है। अब ये बार बार रा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको शद लिखकर ऊपर दो जबर की तनवीन डाल दी, ये बन गया दर्रा। ठीक है, दर्रन अगर आप मिलाकर पढ़ेंगे और दर्रा अगर आप वक्फ करके पढ़ेंगे। आप जानती हैं कि फतहतैन की जब तनवीन आती है तो उसके बाद एक अलिफ हमें लिखा हुआ नजर आता है, और जब इस पर वक्फ किया जाता है तो एक जबर और एक अलिफ को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो उसी इसी तरह से आगे देख लेते हैं, इसकी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाब दौद से फा रा रा हरूफ मादा, वजन क्या होता है बाब दौद का, दौराबा यदरिबु दरबन। तो इस हरूफ मादा को बाब दौद पे डालेंगे तो ये बन जाएगा फारा रा। ठीक है, दौराबा पर फारा रा। तो दो रायें तो जमा हो गई, लेकिन दोनों मुतहर्रिक हैं और पीछे कोई साकिन भी नजर नहीं आ रहा। इट मीन के रूल नंबर 3 अप्लाई होगा कि इसको जबरदस्ती हमें साकिन करना पड़ेगा। तो जब जबरदस्ती साकिन किया तो इदगाम की आइडियल सिचुएशन क्रिएट हो गई कि रा पहली रा साकिन और दूसरा मुतहर्रिक, तो इसको शद करके लिख दिया जाता है जो बन जाता है फर्रा। ठीक है, इसी तरह से मुजारे आ गया यफरीरू, ये हमारे पास वजन आ गया यफरीरू, यफरीरू। और अब यहाँ पर दो रा जमा होंगे, दोनों मुतहरिक है, रूल नंबर दूसरा अप्लाई होगा कि अब इस रा की हरकत पीछे दे दी जाएगी, और ये फा जो है वो साकिन था वो रा साकिन हो जाएगी, और रा जेर वाला थे वो फा जेर वाली हो जाएगी। तो यानी कि हरकत यहाँ पीछे ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये बन गया, अब इदगाम की सिचुएशन क्रिएट हो गई, अब इसको शद करके लिख दिया जाएगा, ये बन जाएगा यफिर्रो, यफिर्रो। ठीक है, और इसी तरह से मजदर आ गया फिरौरन। अब यहाँ पर चूंकि दो रा एक साथ जमा नहीं हो रही, तो इच मीन कि यहाँ पर इदगाम के कवायद अप्लाई नहीं हो रहे। हरफ की तकरार है, मुदाफ है, लेकिन इदगाम के कवायद अप्लाई नहीं हो रहे। तो जहां पर इदगाम के कवायद अप्लाई नहीं होंगे वहां नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तीन कवायद पढ़े। पहला कायदा क्या था कि पहला हरफ साकिन और दूसरा मुतहरिक हो तो इदगाम के कवायद होंगे। अगर दोनों हरूफ जो एक जैसे हरफ हैं वो दोनों मुतहरिक हैं तो भी इदगाम के कवायद होते हैं। और अगर पीछे कोई हरफ साकिन है तो पहला हरफ जो है वो जो एक एक जैसे हरूफ थे उनमें से जो पहला हरफ है वो अपनी हरकत पीछे दे देगा और खुद साकिन होकर शद के साथ उसको लिख दिया जाता है। और अगर पीछे कोई हरफ साकिन नहीं है तो उसको जबरदस्ती साकिन कर दिया जाता है। ये तीसरा कायदा हमने पढ़ा। लेकिन अब यहाँ पर देखें कि दो रा तो है लेकिन दरमियान में एक अलिफ आ रहा है, तो ये एक साथ इकट्ठे नहीं हो रहे। इट मीन कि यहाँ पर वो शराइत लागू नहीं हो रही, कवायद की सिचुएशन नहीं बन रही, तो हम यहाँ पर कोई कायदा अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से गैर सही फेल की जो बाब नंबर तीसरा है यानी कि बाब सीन, उससे देख लेते हैं कि मिसाल मीन सीन सीन हरूफ मादा सामिया यस्माउ समाअन के वजन पर फेल माजी हो जाएगा मासीसा, यानी कि सामिया के वजन पर डाला मासीसा। और अब यहाँ पर भी रूल नंबर तीसरा अप्लाई हो रहा है जिसमें पीछे कोई हरफ साकिन नहीं है, इसको जबरदस्ती साकिन किया गया। तो ये बन गया अब पहला सीन साकिन और दूसरा सीन जबर वाला, तो ये क्या बन गया मस्सा, तशदीद के साथ इसको लिख दिया गया।
फेल मुदारे इसी तरह से यमससु, यस्माउ के वजन पर डाला यमससु, और इसमें भी दोनों हरूफ मुतहरिक हैं, यानी कि एक जैसे जो हरूफ हैं सीन सीन दोनों मुतहरिक हैं, एक पर जबर है एक पर पेश है। पिछला हरफ साकिन है तो ये जो सीन है अपनी हरकत पीछे दे देगा, तो ये बन जाएगा यमसु। और इसने हरकत अपनी पीछे दे दी। अब ये आइडियल सिचुएशन बन गई इदगाम की शद लिखने की, कि पहला सीन साकिन और दूसरा मुतहरिक, तो ये शद पेश के साथ आ जाएगी, ये बन जाएगी यमस्सु। इसी तरह से मस्दर पे आ जाते हैं। मसन, ठीक है। अब पहला सीन साकिन है और दूसरा फतहतैन की तनवीन के साथ है, इदगाम की आइडियल सिचुएशन रूल नंबर 1 अप्लाई होगा और ये शद के साथ लिखा जाएगा मसन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम देखते हैं कि बाब नून, बाब दौद और बाब हमने देखा सीन के साथ, ठीक है, फेल माजी मुसारे और मस्दर को तीनों को। अच्छा, यहाँ पर तीनों का मैंने कंक्लूड यहाँ पर लिख दिया कि बाब नून दौरारा फेल माजी से बना था दर्रा, मुजारे बना था यदुर्रू, और बाब दुआ से फरारा माजी बना था फर्रा, मुजारे बना था यफिर्रु। बाब सीन से माजी बना था मस्सा, मुजारे बना था यमस्सु। ठीक है, तो आप देख सकती हैं कि माजी बाब नून हो चाहे बाब दुआद हो चाहे बाब सीन हो, तीनों से एक जैसा बना है। तो इसको पहचानेंगे कैसे कि ये बाब किस बाब से है, ये रूट वर्ड या ये फेल जो है वो किस बाब से है, क्योंकि बाब के पहचानने का माना पे असर पड़ता है। बाब नून में तर्जुमा कुछ और हो सकता है, बाब दुआद में और बाब सीन में कुछ और हो सकता है। तो बाब का फर्क माना में फर्क डालता है। तो अब इसको कैसे पहचानेंगे ये हमें डिक्शनरी ही बताएगी, या हम इसके साथ मुजारे को जब पढ़ें तो पता चलेगा। और प्रैक्टिस के साथ साथ हमें ये अंदाजा हो जाता है, लेकिन इसकी पहचान का कोई खास तरीका हमारे पास नहीं है, क्योंकि देखें दर्रा फर्रा मस्सा तीनों एक ही वजन पर हमें नजर आ रहे हैं। जबकि मुजारे की पहचान की जा सकती है आराम के साथ, जैसे दुर्रु, मुजारे में बाबनून जो है वो पेश से पहचाना जाता है, यानी कि बाब नून में आपको यहाँ पर दौद पर देखिए पेश नजर आ रही है, यानी कि आपको जो पहला हरफ है फा कलीमा उस पर आपको पेश नजर आएगी, तो आप पहचान जाएंगी कि ये बाब नून है। और मुजारे में अगर फा कलीमा पर जेर नजर आए तो आप पहचान जाएंगी कि ये बाब दुआद है। ठीक है, बाब दुआद किससे पहचाना जाएगा, जेर के साथ। और अगर फा कलीमा पर जबर नजर आए मुजारे में तो आप पहचान जाएंगी कि ये बाब सीन है। तो मुजारे में आप पहचान सकते हो लेकिन माजी में आप पहचान नहीं सकते, उसका अंदाजा आपको वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ ही होगा। बाब नून पेश से पहचाना जाएगा, बाब दो जेर के साथ, और बाब सीन जबर के साथ पहचाना जाता है। और आप देखेंगे सलासी मुजर्रद में जब हम पढ़ते हैं नसरा यंसुरु, दौराबा यदरिबु, सामिया यस्माउ, तो इसमें नसरा और दौराबा माजी में भी सेम है, और वो हमें अंदाजा हो जाता है प्रैक्टिस कर करके, या फिर डिक्शनरी से हमें बात मालूम होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। मुजारे आप आराम से पहचान सकते हो, लेकिन माजी पहचानने के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस और डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ता है। तो इंशाल्लाह अभी हम बाब नून की एक गर्दान बनाएंगे, गर्दान देखते हैं बाब नून से। सबसे पहले हम इसको हा दौद दौद हुरूफ मादा फेल माजी, तो बाब नून से डालेंगे तो ये बन जाएगा हा दौ दौ। ठीक है, ओरिजिनल क्या होगा, हा दो दा, हा के ऊपर भी जबर, दौद के ऊपर भी जबर, और इस दौद के ऊपर भी जबर। तो रूल के मुताबिक रूल नंबर 3 अप्लाई होगा, जिसमें दोनों हरूफ एक जैसे जो हैं वो मुतहरिक तो हैं लेकिन पीछे कोई हरफ साकिन नहीं है, तो इसकी हरकत जबरदस्ती साकिन कर दी जाएगी। ये बन जाएगा हा जबर वाला दौद साकिन, और ये दौद जो है वो हो जाएगा हमारे पास जबर वाला। ठीक है, तो ये अब जब पहला दौ साकिन और दूसरा जबर वाला हो जाएगा तो इसको छद करके लिख दिया जाएगा, ये लिखा जाएगा हक दौ। तो ये इसकी गर्दान इसी से पढ़ेंगे हक दौ, हक दौ, आगे एक अलिफ लगा दी तो मुसन्ना बन गया, हदू जमा हो गया, हदत ता साकिन लगी तो मोनस गायबा वाहिद मुजक्कर का सीगा, वाहिद मोनस का सीगा हो गया हदता। ठीक है, तो यहाँ तक ये जो 5 सीगे मुकम्मल हो गए, इसमें आपको शद नजर आएगी, इसमें आपको इदगाम नजर आएगा। क्यों नजर आएगा, क्योंकि सिचुएशन
जो बन रही है वो यहाँ तक बन रही है, आगे इदगाम क्यों नजर नहीं आएगा वो इंशाल्लाह भी हम देखते हैं। जैसे ये था ना, अगर हम फ़ाला की गर्दान पढ़े तो फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़ालना, तो फ़ालना के वजन पर हा दो दाद को डालें तो क्या बन जाएगा, हददना, हददना। ठीक है, हमने तीन अदगाम के रूल पढ़े। पहले रूल में क्या था कि दो एक जैसे हरफ हों, पहला हरफ साकिन दूसरा मुतहरिक तो इदगाम होगा। दूसरा रूल क्या था कि दोनों हरफ मुतहरिक हों और या पिछला हरफ हमें साकिन नजर आए तो ये पहला हरफ अपनी हरकत पीछे दे देगा। ठीक है, या फिर ये था कि दोनों हरफ मुतहरिक हों और पीछे कोई साकिन ना हो तो इसको जबरदस्ती साकिन कर देंगे। ठीक है, लेकिन इन तीन रूल में ये रूल नहीं था कहीं पे भी कि पहला हरफ मुतहरिक और दूसरा साकिन हो तो कोई रूल होगा। तो जब इस यानी कि रूल की जो कंडीशन है उस पर ये फुलफिल नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर शद नहीं होगी। कि इदगाम कब होता है, जब पहला हरफ साकिन और दूसरा मुतहरिक है, या अगर दोनों मुतहरिक हो तो भी उन पे कंडीशन वगैरह लगाकर हम उसको साकिन करके इदगाम कर देते हैं। लेकिन अगर दूसरा हरफ साकिन हो तो ये सिचुएशन कतई नहीं हो सकती, तो इसलिए यहाँ पर कोई कायदा अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हादौत ना इसी तरह से लिखा पढ़ा और कुरान पाक में इसी तरह से नजर आएगा। और आगे ऑनवर्ड इसी को लेकर सारी गर्दान बनाई जाएगी। हदता, हदतुमा, हदतुम, हदती, हदतुमा, हदतुन्ना, हदतु, हदतना। तो यूं साबित हुआ, जैसे मैंने आपके शुरू में एक नोट लिखा था कि सलासी मुजर्रद फेल माजी में पहले पांच सिगों में शद होगी, पहले पांच सिगों में इदगाम के कवायद अप्लाई होंगे, बाकी के सिगों में इदगाम के कवायद अप्लाई नहीं होंगे। क्यों अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि रूल्स के मुताबिक कंडीशन नहीं बन रही। दो एक जैसे हरूफ तो हैं, लेकिन अगर पहला साकिन और दूसरा मुतहर्रिक नहीं है तो ये कायदा अप्लाई नहीं हो सकता। और अगर ये दोनों मुतहरिक होते तो भी शायद कायदा हम लगा लेते, लेकिन अभी चूंकि पहला मुतहरिक दूसरा साकिन है, दूसरे का मुतहरिक होना जरूरी था। तो अगर सिचुएशन जो है वो उसके मुताबिक रूल के मुताबिक नहीं होगी तो इदगाम नहीं होगा, तो शद नहीं की जाएगी। ठीक है, शद मीन दैट कि पहला हरफ साकिन दूसरा मुतहरिक, उसी सूरत में शद लिखी जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं, मुजारिक की किरदार देख लेते हैं। हा दौद दौद हरूफ मादा बाब नून मुजारे की गर्दान बनेगी। जैसे उसको हमने किया यन शुरू के वजन पर डालें तो ये बन जाएगा यह दूदू। ठीक है, यह दूदू, हा साकिन था, दौद के ऊपर पेश थी, दूसरे दौद पे भी पेश थी। तो अब रूल नंबर दो अप्लाई होगा कि दोनों हरूफ मुतहरिक थे, जो एक जैसे हरूफ हैं वो मुतहरिक थे। इस पे भी पेश, इस पे भी पेश, पिछला हरफ हमें साकिन मिल रहा था। तो इस ये जो पहला दुआद है ये अपनी हरकत पीछे दे देगा, तो ये हा के ऊपर पेश आ गया, दुआद खुद साकिन हो गया। और जब वो खुद साकिन हुआ और अगला हरफ पेश वाला तो उसको शद करके लिख दिया गया, ये बन गया यहुद्दु। मुजक्कर गायब वाहिद का सीगा होगा यहुद्दु। फिर इसकी गर्दान बनाएंगे, जैसे हमने कहा था कि मुजारे में तमाम सीगों में रूल अप्लाई होगा सिवाय मोनस हा गायबा और हाजरा जमा के सीगों के। इन दो सीगों के अलावा बाकी सब सीगों में कवायद अप्लाई होंगे। यहूदू, यहूदानी, आनी का इजाफा कर दिया मुसन्ना बन गया, ऊना का इजाफा कर दिया तो जमा का सीगा क्रिएट हो गया यहूदूना, तहुद्दू, तहुदानी, यहदुदना। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि वो सिचुएशन नहीं पैदा हो रही तो इसलिए रूल भी अप्लाई नहीं होगा इदगाम का। सिचुएशन यहाँ पर या तो ये साकिन होता या फिर ये भी मुतहरिक होता, दो सिचुएशन हो सकती इदगाम की, अदरवाइज इस सिचुएशन में कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर तहुदू, तहुदानी, तहुदूना, तहुदीना, और उसके बाद आ गया तहुदानी, तहतूतना। यहाँ पर भी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। अहुदू, नहुदू। तो उम्मीद है कि आपको माजी और मुसारे दोनों के गर्दानें बनानी आ गई होंगी इंशाल्लाह। पहले सबसे पहले स्टेप में आपने हरूफ मादा को जिस बाब पर आपने गर्दान बनानी है, इस बाब के वजन के ऊपर आपने ओरिजिनल लिखना है। जैसे नसरा था तो हमने लिखा हादौर, हादा दौर। ठीक है, और जन शुरू था तो हमने लिखा या, यह दूदू। ठीक है, यह दूदू। ओरिजिनल रूफे मादा को उसी तरह उसी वजन पर लिख लेना है। और उसके बाद देखना है कि क्या इदगाम के जो तीन कवायद हमने पढ़े हैं इनमें से कोई एक फुलफिल हो रहा है। अगर हो रहा है तो वही कायदा लगाएंगे और इदगाम कर देंगे, और उसके बाद ऑनवर्ड सारी गर्दान लिखेंगे। और जो है वो माजी में पहले पांच सिगों में तब्दीली होगी, मुजारे की पूरी गर्दान तब्दील होगी सिवाय मोनस
जमा के सीगों के। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। आज का होमवर्क देख लें। होमवर्क क्या है कि बाब नून दाल आइन, आइन हरूफ मादा से माजी और मुजारे दोनों की गर्दान लिखनी है। बाब सीन मीम सीन सीन हरूफ मादा, बाब नून का बाबा, बाब सीन कौफ रा रा और बाब दाद फा रा रा, माजी और मुजारे की तमाम पूरी गर्दानें लिखनी है, या माजी मुजारे की मुकम्मल गर्दान आपने लिखनी है। माजी में सिर्फ पहले 5 सीगों में तब्दीली हमें नजर आएगी, मुजारे में सारी गर्दान में तब्दीली नजर आएगी सिवाय मोनस जमा के सीगों के। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। सबसे पहले ऊपर आप टॉप पर एक बाप का वजन लिखेंगी, नासरा यांसुरु, और उस वजन पर ये दा यद बना लेंगी। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगी कि इदगाम के जो 3 कवायद हमने पढ़े उनमें से कौन कौन सा कायदा लागू हो रहा है, वो कायदा लगाएंगे, और उसके बाद जब सिग्गा बन जाएगा तो उससे पूरी गर्दान आप लिखेंगी माजी की, इसी तरह से मुजारे की, और सब में यही स्टेप आप फॉलो करते हुए इसको मुकम्मल करेंगी इंशाल्लाह। तो इन अफ़ाल को जब हमें तजवीद में पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि शद को मजबूती से पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर 2 हरूफ होते हैं। तो आज हमने देखा कि वो 2 एक जैसे हरूफ जो होते हैं वो किस कंडीशन में होते हैं, इनको पढ़ा कैसे जाता है, कि इनमें पहले जो साकिन हरफ होता है उसको पिछले हरकत वाले हरफ से मिलाकर पढ़ा जाता है, और जो मुतहरिक होता है उसको फिर अलग से पढ़ा जाता है। लिखा कैसे जाता है, एक ही हरफ लिखकर, यानी कि 2 एक जैसे हरूफ होते हैं लेकिन लिखा एक ही जाता है, और उसके ऊपर शाद डालकर वो हरकत डाल दी जाती है जो दूसरे हरफ पर होती है। चाहे वो पेश हो, चाहे वो जबर हो, चाहे वो जेर हो, वो मैटर नहीं करती। तो ऐसे अफाल में शिद्दत, कसरत और मुबालगा पाया जाता है। कभी कभी इसमें मुबालगा पाया, जैसे मद्दा, शद्दा, हब्बा। ठीक है, मद्दा का मतलब खींचना, शद्दा शिद्दत से, हब्बा मोहब्बत से। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके माना पे भी बात करेंगे, कुरान से मिसालें भी ढूंढेंगे, और थोड़ी बहुत मिसालें आज हम इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम हिफाजत की दुआ पढ़ते हैं सुबह शाम के अज़कार में, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। तो यदुर्रु जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो हमारे पास मुदाफ की किस्म में से है। ठीक है, इसी तरह से सूरह माउन में है यदुल यतीम। ठीक है, यदु, तो ये मुजारे का सीगा हमें इस्तेमाल वहां पर नजर आता है। और सूरह माउन की एक और आयत है, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, यहुद्दु। ठीक है, हा दो दाद हरूफ मादा, और ये भी मुदाफ की किस्म है, इसमें भी इदगाम के कवायद अप्लाई हुए हुए हैं। इसके अलावा सूरह मसद या सूरह तब्बत भी इसको कहा जाता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब। तो इसमें इसके रूट वर्ड आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, तब्बत यदा अबी लहब व तब। और इसमें जो 2 हरूफ इस्तेमाल, 2 अफ़ाल इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, गैर सही फेल में से 2 अफ़ाल इस्तेमाल हुए हैं इस आयत में, सूरह मसद की आयत नंबर 1 में। आपने इसके रूट वर्ड बताने हैं और बताना है क्या ये सही फेल है या गैर सही फेल है। अगर गैर सही फेल है तो गैर सही फेल की ये कौन सी किस्म है, महमूज है, मुदाफ है या मुअत्तल है, ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। और सीगा भी बता सकती हैं कि तब्बत सीगा नंबर कौन सा है और तब्बक सीगा नंबर कौन सा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज का लेसन आपको फायदामंद आपके लिए हुआ होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस इल्म को, हमारी इस कोशिश को हमारे लिए नफा बख्श बना दे। तो इस तरह के मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो आगे शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट जरूर किया करें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपको कितनी बात समझ आई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अगले लेसन के साथ आपके साथ बहुत जल्द मिलेंगे। अगले लेसन में इंशाल्लाह हम मुताअफ को ही मजीद भी अबवाब के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।